Hello everybody. The topic I'm going to explain to you today is market failure and sources of market failure. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आप पहले ये देख लें कि when market failure occurs when marginal social costs are not equal to marginal social benefits. In other words, we can say that market failure occurs when private economy is not in the position to produce at optimum level of output. So what is optimum level of output? इसको हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं. Optimum level of output is the level of output where marginal social cost and marginal social benefits are equal. For example, as per this figure, you can see this is marginal social benefit and it is like a demand curve. This is marginal social cost, which is like a supply curve. This is quantity or output produced, origin point, and on y-axis we have costs and benefits, costs/benefits. And optimum level of output is at point E, where marginal social cost and marginal social benefits are equal. So you can see that optimum output will be Q, where cost and benefits both are equal. ये बेस्ट सिचुएशन है. यहाँ पे हम इसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट. जितना सोसाइटी को चाहिए उतना प्रोड्यूस हो रहा है. But private sector of economy never produces at optimum level of output. It may be involved in overproduction or underproduction. Overproduction का मतलब है कि अगर आउटपुट Q से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, लेट्स से कि आउटपुट यहाँ पे अगर प्रोड्यूस होता है Q1 पे, then Q1 is overproduction. So we can label it as overproduction. Overproduction results in deadweight loss equal to this triangular area. So this is deadweight loss. Suppose this is point A, this is point B. So deadweight loss is equal to A, B, E. और इस ट्राइंगल को अगर मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए एग्जामिनर कह दे तो आप फॉर्मूला लगा लें 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. ओके. सो और अगर प्रोडक्शन Q से कम हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट somewhere below output Q at Q, let's say Q2, this is under production. और अंडर प्रोडक्शन के केस में भी अगेन डेड वेट लॉस अकर होता है. एंड नाउ दिस ट्रायंगल विल बी द डेड वेट लॉस. जब हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो इस केस में हमें एक्स्ट्रा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज फेस करना पड़ रही होती हैं. सो ये डेड वेट लॉस बेसिकली एक्स्ट्रा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को शो करेगा. लाइक पोल्यूशन हो सकती है सोसाइटी के अंदर. और अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स जनरली कॉजेज लॉस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. लॉस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. तो जब भी अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन होगी, यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इसको हम डेड वेट लॉस का नाम देंगे. डेड वेट लॉस इज कलेक्टिवली द लॉस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. और अगर इस ग्राफ के हिसाब से हम देखें तो इसमें अगर हम इस पूरी ट्राइंगल को कंसीडर करें, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं. ये ऊपर वाली जो ट्राइंगल है दिस इज लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. नीचे वाली ट्राइंगल लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस है. कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये कलेक्टिवली डेड वेट लॉस कहलाता है. सो कमिंग टू द पॉइंट कि मार्केट फेलियर कब अकर होगा. मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट और सोसाइटी इज private producers are not producing at optimum level of output. So what are the causes of this market failure? Let's have a look on the causes or reasons of market failure. So these are multiple sources or reasons for market failure. First of all, starting with the existence of positive or negative externalities. Whenever externalities exist in the market, that causes market failure. जैसा कि आपने इस ग्राफ में देखा था, this is the graph again. इस ग्राफ में देखा था कि in case of overproduction, negative externalities will be faced by the society, so it will cause dead weight loss and it causes market failure. और negative externalities हों चाहे positive externalities हों, दोनों अगर exist करें it means market failure होगा. लेकिन अक्सर confusion होती है स्टूडेंट्स को इस बारे में कि positive externalities अगर exist करती हैं तो it means ये तो बड़ी अच्छी बात है. डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आपको मिल रही हैं, बट बिकॉज ऑफ अंडर प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ये वाली भी आपको मिल सकती थी, इनको आप लूज करें.
अगर आप आउटपुट Q2 से Q1 पे ले जाते, Q पे ले जाते सॉरी, तो आपके पास ये वाली भी आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज मिल सकती थी जो कि आप लूज करें। सो चाहे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो चाहे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो, दोनों केसेस में मार्केट फेलियर occur होगा if there is existence of these externalities. Information failure is another reason. Sometimes we don't know exact cost and benefits of a product, so sometimes we don't consider or we don't perceive the true cost of demerit goods, जिसकी वजह से लोग ओवर कंज्यूम कर रहे होते हैं। demerit goods को ओवर कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके मार्केट फेलियर को कॉज करेगा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को इंक्रीज करेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन फेलियर का मीनिंग क्या है? इन्फॉर्मेशन फेलियर का मीनिंग है कि जब हमें व्हेन वी डोंट एग्जैक्टली नो ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फेलियर। सो एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड, ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन फेलियर कॉज होता है। एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड में क्या है? मॉरल हैजर्ड तो क्लियरली जैसा नाम से जाहिर है कि ये हैजर्ड होता है, लाइक इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पास ही एग्जैक्टली ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन नहीं थी कि आपको वो डिसीव करे, बट वो आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से डेफिनेटली अगर किसी की इंटेंशन सही हो बट ही इज प्रोवाइडिंग इन सफिशिएंट द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट करेक्ट, देन डेफिनेटली उसके जो लॉस है उसको तो आप नहीं बचा सकते। चाहे किसी की इंटेंशनली किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी हो या अनइंटेंशनली दी हो, उसके इम्पैक्ट तो डेफिनेटली रिसोर्स के मिस एलोकेशन पे होती है। मॉरल हैजर्ड तब होता है जब आपको आपका सोर्स यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसकी तरफ से अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है अनइंटेंशनली। एडवर्स सिलेक्शन में यह है कि सोर्स आपको जान के ही गलत इन्फॉर्मेशन देता है ताकि आपकी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो और आपको नुकसान हो सके। सो इन्फॉर्मेशन फेलियर की दो रीजंस हैं, वन इज इंटेंशनल एंड अदर वन इज अनइंटेंशनल। जैसे डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर अगर गलत मेडिसिन अगर प्रेस्क्राइब करता है तो इट मीन्स वो मॉरल हैजर्ड होगा, क्योंकि डॉक्टर की इंटेंशंस नहीं होगी कि वो अपने पेशेंट को रिसीव करे, अपने पेशेंट को नुकसान दे। जो उसने टेस्ट किए, जो उसने डायग्नोसिस किए, उससे हो सकता है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही ना मिली हो, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन फेलियर हो, उसने रॉन्ग मेडिसिन आपको दे दी और आपको फायदा होने के पीछे नुकसान हो जाएगा। एडवर्स सिलेक्शन में यह है कि इंटेंशनली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है वो कुछ इन्फॉर्मेशन को क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करता इन गुड फेथ, और जब ऐसा होगा तभी डेफिनेटली मार्केट फेलियर होगा। जैसे इंश्योरेंस के केस में होता है, लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते ताकि इंश्योरेंस कंपनी उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दे, लेकिन बाद में फिर डेफिनेटली जैसे वो चीज़ डिस्क्लोज होती है तो वो फिर प्रॉब्लम कॉज करती है। इन्फॉर्मेशन फेलियर की वजह से अब मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी एट द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करने के लिए जनरली क्या करती है कि जो बाकी के क्लाइंट्स हैं उनसे वो फिर ओवर चार्ज करती है, तो ये भी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कॉज करेगा। अंडर प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, अगर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक और मेरिट गुड्स बनाना शुरू कर दे तो आप क्या समझते हैं कि वो सफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा? पब्लिक और मेरिट गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी, नॉन रिजेक्टेबिलिटी के एलिमेंट्स होते हैं, लाइक इससे प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं होता। और मेरिट गुड्स बेसिकली प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द सोसाइटी मोर देन द सोसाइटी इटसेल्फ परसीव्स। सो आप किसी को भी एज अ प्राइवेट प्रोड्यूसर किसी को भी लोग बेनिफिट देने की, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट देने के लिए राजी नहीं होते, विलिंग नहीं होते। सो जब भी पब्लिक और मेरिट गुड्स गवर्नमेंट कहेगी प्राइवेट सेक्टर को बनाने के लिए तो वो अंडर प्रोड्यूस करेगा तो सोसाइटी को लॉस होगा। ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स वो होती हैं जो ना सिर्फ कंज्यूमर्स बल्कि थर्ड पार्टी लाइक सोसाइटी को भी नुकसान दे सकती हैं। दीज आर हार्मफुल, लाइक सिगरेट का नुकसान सिर्फ स्मोकर को नहीं होता बल्कि पैसिव स्मोकर्स को भी होता है, सोसाइटी को भी होता है। द लास्ट रीजन फॉर मार्केट फेलियर इज मोनोपोली प्रैक्टिस। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर मार्केट इज नोन एज मोनोपोली। और मोनोपोली क्या करती है? मोनोपोली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो भी अंडर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है और डेड वेट लॉस को कॉज करती है। For example, we have this graph of monopoly. We have price, revenue and cost on y-axis and quantity on x. This is average revenue, which is exactly same as demand curve, and this is marginal revenue, which is the shadow of average revenue. अब अगर हम marginal cost curve draw करें तो optimum level of output की condition होती है कि MC should be equal to AR.
optimum output takes place where MC is equal to AR. It means optimum level of output यहाँ पे होगा. प्राइस कितनी होनी चाहिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से? प्राइस पी होनी चाहिए और आउटपुट कितना होना चाहिए? क्यूपी होना चाहिए लेट्स से. लेकिन मोनोपोली क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करती है? नेवर. मोनोपोली अपना इक्विलिब्रियम वहाँ सेट करती है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. यानी मोनोपोली फर्म विल प्रोड्यूस आउटपुट एट QM and it will charge price at PM. So monopoly, since monopoly is involved in overcharging and underproduction, so it causes deadweight loss, and that deadweight loss is equal to this much area. This is again triangle. Optimum level अगर हमारे पास EP था तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो ट्राइंगल बिल्ड हुई है इसको हम नाम दे देते हैं AB EP. ये जो ट्राइंगल है ये अगेन डेडवेट लॉस होगा और डेडवेट लॉस जब भी होगा मार्केट फेल हो जाएगी. सो मोनोपोली प्रैक्टिस भी डेफिनेटली कॉजेज मार्केट फेलियर. So these are multiple causes or sources of market failure, and if you are interested to know कि इस market failure को correct कैसे किया जा सकता है, then you must click on the next video. Furthermore, I suggest all of you to get these 3 important books which will definitely help you out. And one is Comprehensive Economics A2 level, number 2 is Topical Paper 3, and number 3 is Topical Paper 4. टॉपिकल पेपर 3 और 4 के अंदर कम्प्लीटली हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है. पेपर 4 में फुल लेंथ आंसर्स प्लस केस स्टडी सबको सॉल्व किया हुआ है. पेपर 3 में हर MCQ को विद रीजनिंग बताया हुआ है कि इसकी रीजन क्या है और क्या करेक्ट आंसर होगा. एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन इन पेपर 3 और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स में पूरा सिलेबस का कंटेंट के नोट्स हैं. सो दीज 3 बुक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. और अगर स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टी in finding these books, then you can contact on this number, or if you are interested to join online classes with me, then you must contact me. You can again contact on this number. So this is it for now, and if you are interested to know what are the policies and effectiveness of policies to correct market failure, then you must click on the next video. Bye bye.